Onam is the most important festival of Kerala. Kerala is a southern state of India. It is flanked by the Indian Ocean on its west. Kerala is a beautiful state, lush and green throughout the year. The backwaters, fringed with tall and elegant coconut palms, add to Kerala's scenic beauty. ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है। यह पश्चिम में भारतीय महासागर से घिरा हुआ है। केरल एक सुंदर राज्य है जो पूरे साल हरा भरा और शादाब रहता है। इसके बैकवाटर, जो ऊंचे और सुंदर नारियल के पेड़ों से घिरे होते हैं, केरल की प्राकृतिक सुंदरता में और वृद्धि करते हैं। According to the Hindu lunar calendar, the festival of Onam falls in Shravana Bhadrapad, that is around August to September. Nature is at its best during these months. The rains are its best during these months. Till the rains are over, the trees look washed and clean, and there is greenery all around. The days are bright and sunny and the air is cool and refreshing. The granaries are full with the freshly harvested paddy. It is a time for celebration. It is time for Onam. हिंदू लूनी कैलेंडर के अनुसार ओणम का त्योहार श्रावण भाद्रपद में आता है, यानी अगस्त सितंबर के आसपास। इन महीनों में प्रकृति अपने सबसे अच्छे रूप में होती है। बारिश इस दौरान अपनी चरम अवस्था पर होती है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती, पेड़ धोकर साफ नजर आते हैं और चारों ओर हरियाली फैल जाती है। दिन चमकीले और धूप वाले होते हैं और हवा ठंडी और ताजगी से भरी होती है। अनाज के गोदाम ताजे कटे हुए धान से भरे होते हैं। यह उत्सव का समय होता है। यह ओणम का समय होता है। Preparations for the 10-day-long festivities begin well in advance. People clean their homes and plaster their courtyards with cow dung. They place 2 little mounds of King Bali and Vishnu, their premier gods. Women and children gather flowers for making designs called attapu on the floor. This floral rangoli is done at the entrance to every home to welcome the gods, hoping that they will give happiness to them. 10 दिन लंबी उत्सव की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों को साफ करते हैं और आंगन को गोबर से पोतते हैं। वे राजा बाली और विष्णु, अपने प्रमुख देवताओं के 2 छोटे टीले रखते हैं। महिलाएं और बच्चे फूल इकट्ठा करते हैं ताकि वे आंगन में अथापू नामक डिजाइन बना सकें। यह फूलों की रंगोली हर घर के प्रवेश द्वार पर की जाती है ताकि देवताओं का स्वागत किया जा सके और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे घर में खुशी लाएंगे। A family puja is held and prayers are offered. Every member of the family gets new clothes. परिवार में पूजा होती है और प्रार्थनाएं अर्पित की जाती हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नए कपड़े मिलते हैं। And gifts. This is followed by a lavish feast with traditional sweets. Besides the family functions, there are social functions as well. Performances of the classical dance of Kerala, Kathakali, are held. Masked Kathakali dancers enact mythological stories to the accompaniment of traditional musical instruments. और उपहार मिलते हैं। इसके बाद पारंपरिक मिठाइयों के साथ एक शानदार दावत होती है। पारिवारिक समारोहों के अलावा सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। केरल की शास्त्रीय नृत्य कला कथकली का प्रदर्शन होता है। मुखौटा पहने हुए कथकली नर्तक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की धुन पर पौराणिक कथाएं निभाते हैं। Sporting events are also held. The most exciting of these is the snake boat race. Long, slim boats race through the backwaters. Hundreds of spectators throng to watch this race. खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इनमें से सबसे रोमांचक है सांप की नाव की दौड़। लंबी, पतली नावें बैकवाटर में दौड़ती हैं। सैकड़ों दर्शक इस दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। Besides being a celebration for a rich harvest, Onam also has a myth behind it. Why are Mahabali and Vishnu worshipped? ओणम केवल समृद्ध फसल का उत्सव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मिथक भी है। महाबली और विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? King Bali was the king of Kerala. He was a great ruler, a just and kind king. His subjects were very happy. राजा बाली केरल के राजा थे। वह एक महान शासक, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा बहुत खुश थी। Indra, the king of the Devas, was not happy with King Bali's popularity. He feared losing his throne to King Bali. He sought Lord Vishnu's help to destroy King Bali.
लॉर्ड विष्णु अग्रीड। देवताओं के राजा इंद्र राजा बाली की लोकप्रियता से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि राजा बाली उनका सिंहासन छीन लेंगे। उन्होंने राजा बाली को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सहमति दी। Lord Vishnu took the form of Brahmin dwarf called Vamana and went to the court of King Bali. Seeing the holy man, King Bali welcomed Vamana. भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बौने के रूप में वामन का रूप लिया और राजा बाली के दरबार में पहुँचे। एक पवित्र व्यक्ति को देखकर राजा बाली ने वामन का स्वागत किया। Vamana said, I have heard your praises far and wide. I am told you are a friend of the poor. वामन ने कहा, मैंने आपके बारे में दूर दूर तक प्रशंसा सुनी है। मुझे बताया गया है कि आप गरीबों के मित्र हैं। What is your wish, Vamana? Said King Bali. I shall do whatever I can to help you. आपकी इच्छा क्या है, वामन? राजा बाली ने कहा, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ आपके मदद के लिए करूँगा। राजन, my needs are few. All I want is a piece of land, as राजन, मेरी आवश्यकताएं कुछ ही हैं। मुझे केवल एक टुकड़ा भूमि चाहिए, जैसा much as I can cover in 3 steps. Is that all? Questioned King Bali. Your wish will be granted. But what will you do with such a tiny bit of land? वामन ने केवल मुस्कुराया। फिर वह आकार में बढ़ने लगा। वह बढ़ता गया और वह इतना बड़ा हो गया कि जैसे वह खुद ब्रह्मांड के समान हो। 2 कदमों में उसने पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को कवर कर लिया। अब मुझे अपना तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए जब मैंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को कवर कर लिया? वामन ने पूछा। राजा बाली ने समझ लिया कि उसके सामने विष्णु खड़े हैं, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। आप अपना तीसरा कदम बढ़ाइए और अपना पाँव मेरे सिर पर रखिए, उन्होंने कहा। Vamana pushed King Bali's head down until it reached the patla or hell. Pleased with Bali, he said, I can grant you one wish. वामन ने राजा बाली का सिर नीचे दबाया, यहाँ तक कि वह पाताल या नर्क तक पहुँच गया। राजा बाली से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं आपको एक इच्छा पूरी करने का अवसर देता हूँ। King Bali said, I only want to be allowed to visit my people once a year. राजा बाली ने कहा, मैं केवल यह चाहता हूँ कि मुझे साल में एक बार अपने लोगों से मिलने की अनुमति मिले। So, the festival of Onam is also welcome for King Bali by the grateful people of Kerala. He visits his kingdom once every year at the time of Onam and the people receive him joyously. इसलिए ओनम का त्योहार केरल के आभारी लोगों द्वारा राजा बाली का स्वागत भी है। वह हर साल ओनम के समय अपने राज्य में आते हैं और लोग उन्हें खुशी से स्वागत करते हैं। A festival song sung during Onam tells about the glory of King Bali's reign, an era of great peace, of justice and truth. ओनम के दौरान गाया जाने वाला एक त्योहार गीत राजा बाली के शासन की महिमा के बारे में बताता है, जो शांति, न्याय और सत्य का युग था। Word meaning: Southern, to the most south, दक्षिणी, सबसे दक्षिण में, Flank, edged, किनारे से घेरा हुआ, किनारे से घेरना, Lush, plants growing thickly, हरियाली, घनी रूप से उगने वाले पौधे, Backwaters, a part of water away from the mainstream, पृष्ठजल, मुख्य धारा से दूर पानी का हिस्सा, Fringed, provide with a fringe, किनारी वाली, किनारे से सजी हुई, Elegant, graceful, आकर्षक, सुंदर और शालीन, Greenery, full of vegetation, हरियाली, वनस्पति भरा हुआ, Harvested, act of cutting and gathering crops, कटाई करना, फसल काटने और इकट्ठा करने की क्रिया, Paddy, a field used for growing rice, धान, चावल उगाने के लिए भूमि, Mounds, large piles of earth, टीले, धरती के बड़े ढेर, Gather, to collect, इकट्ठा करना, संग्रह करना, Floral, made with flowers, फूलों से सजा हुआ, फूलों से निर्मित, Lavish, costly, विलासितापूर्ण, महंगा और भव्य, Enact, to be played out, अदा करना, किसी नाटक या भूमिका का प्रदर्शन करना।